ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೀಳಿನ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ನೋಡಲಾರದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 8 ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದೇಶ ರಾಜಕಾರಣ ಭಾರತ ದೇಶದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲಾಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಡ್ದವ್ರು ನೀವು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ದರ್ಬಾರ್ ಇದು. ಹಿಟ್ಲರ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಿಂದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಡೆ ಹೊಡೆದೇ ಹೋದರೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ಈ ನಿರ್ಣಯ ಭಾಳ ತಪ್ಪು, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಏನು ಕೋರ್ಟಿನ ಸಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. आज हम लोग गांधी स्टैचू के सामने आके जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये एक मैसेज है, क्योंकि गुलबर्गा की ज़मीन से कई मुद्दों की आवाज़ें उठे हुए हैं और कई मुद्दों के पीछे जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने काम किए हैं, अवाम के हित के अंदर गलत फ़ैसले लिए हैं, गुलबर्गा की सरजमीन से वो फ़ैसलों को उन्हों को चेंज करना पड़ता है। तो आज गांधी स्टैचू के सामने आके जो हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये क्लियर कट मैसेज है कि राहुल गांधी जी के जो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से स्थगित किया गया है, इसका कारण क्या है? सिर्फ ये है कि उन्होंने अदानी के ख़िलाफ़ उन्होंने सवाल पूछे हैं मोदी जी को जो सवाल पूछे गए थे उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि कोलार में जो राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, वो गुजरात के अंदर एक आदमी ने उसको कंप्लेंट फाइल किया और वही आदमी 1.5 साल के अंदर जाके मजिस्ट्रेट से स्टे का ऑर्डर भी ले लिया। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा मोदी जी से कि आप अदानी के बारे में आप मुंह खोलिए, क्योंकि करोड़ों का घपला हुआ है, ये अवाम जानना चाहती है। जब मोदी सरकार से ये सवाल पूछा गया, जो मिनिस्टर्स होते हैं बीजेपी के, वो सभी लोग राहुल गांधी जी के ऊपर हावी हुए और सवालों का बहुचार लगा दिए। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझको जवाब देने का मौका दीजिए पार्लियामेंट में। इसी दौरान गुजरात से एक नोटिफिकेशन और फैसला जारी होता है कि राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए सज़ा होती है। और जब 2 साल के लिए सज़ा होती है तो कानून बताता है कि 2 साल के लिए उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिज़ाइन देना पड़ता है। ये कानून के तहत उन्होंने राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए निलंबित किया गया। तो जब बीजेपी से मोदी जी से सवाल पूछा जाता है तब ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जो बीजेपी के
खुद लीडर्स उसके जवाब नहीं देते हैं। कभी यही फार्मूला कब बीजेपी के सभी एमएलएज और एमपी के ऊपर लगाए जाएंगे। आज जो उनके पिछले हुए भाषण हैं, जो सभी तबकों को उन्होंने इस अंदाज में चोट पहुंचाई है कि एक एक भाषण का कभी केस रजिस्ट्रेशन हो गया तो मान लीजिए कि बीजेपी के सभी 70% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या एमएलएस रहेंगे पूरे जेल जाएंगे। तो बताना ये चाह रहे हैं हम गुलबर्गा के ज़मीन से कि मोदी गवर्नमेंट को आप जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं और वो इल्ज़ामात लगा के किसी भी आदमी के ऊपर आप केस ठोक देते हैं और इमीडिएटली ऐसा फ़ैसला लेके आते हैं जैसा कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो हम लोग और एक बार मोदी गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आपने जितने भी काम किए हैं वो सभी अवाम के हित में एक काम नहीं है। बस मोदी जी आप इतना बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं, हर चीज़ के पीछे किसान का मुद्दा होने दो कि आपने सूट बूट की सरकार रखते हुए आपने ऐसे काले कानून 3 लागू किए थे किसानों के ऊपर, मगर वो 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़े। तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि सभी लोगों के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या ये नहीं है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगा दिए गए 2014 के बाद, यह हम जानते हैं। मगर मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर आपने हर चीज़, हर मुद्दों के ऊपर आपने उसको छेड़ने की कोशिश की है। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि आप लोगों से कि आप ये आपकी हरकतें बंद कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर आपने 2 साल का निलंबित लगा गया, मगर हिंदुस्तान के अंदर कई राहुल गांधी ऐसे पैदा होंगे और आपको सवाल पूछते रहेंगे। ये आप ये मत भूलिए कि कई चेंजेस, कई हालातें के अंदर आपको फ़ैसले वापस लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये मामूला फ़ैसला नहीं है जो आपने ये भी कर दिया कि राहुल गांधी जी का बंगला खाली करने के लिए। राहुल गांधी जी हर हिंदुस्तान के दिलों में बसे हुए हैं, यानी उनके जो दिल में बसे हुए हैं लोग, उनके अंदर वो घर खाली करने की आपकी क्षमता नहीं है। इसीलिए आपसे हम डिमांड करते हैं कि आपके 2014 के बाद आप पेट्रोल का प्राइस आसमान लेके गए, एलपीजी का प्राइस आसमान लेके गए, डीजल का प्राइस आसमान लेके गए, महंगाई आसमान के लिए। कभी आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आपको हम ये अपील करते हैं, आपको डिमांड करते हैं कि जैसा राजस्थान में गैस सिलेंडर का प्राइस 500 रुपये है, आप कर्नाटक में करके बताइए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आने का मौका लगता है तो आप हर चीज़ के पैसे इतना बढ़ा देते हैं कि दाम बढ़ा देते हैं कि आम आदमी के ऊपर उसका बर्डन गिरे। जैसा इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं तो आप सीधा उसका प्राइसिंग डाउन करते हैं। ये बताना चाहते हैं अवाम को कि हमने 5 रुपये कम कर दिए, हमने 10 रुपये कम कर दिए, हमने 15 रुपये कम कर दिए। ये सीधा है, आप कम नहीं किए हैं, आपने हर चीज़ को डबल कर दिया है और आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। और आने वाले दिनों में ये बसवराज बोम्मई गवर्नमेंट चले जाने वाली है, क्योंकि ये बसवराज बोम्मई गवर्नमेंट ने कई आदमी के ऊपर बर्डन डाले हैं और जाते जाते आपने 4% रिजर्वेशन का जो दाव खेला है वो अवाम के ऊपर बर्डन है, क्योंकि आपने लिंगायत कम्युनिटी को 2% दिए हैं और आप ओकलिगा को 2% दिए हैं। तो ये बताइए, जब इन्होंने डिमांड ही नहीं किया है मुसलमान का रिजर्वेशन लेके आपने उनको दे दिया है, तो हम लोग ना हम लिंगायत के ख़िलाफ़ हैं ना हम ओकलिगा के ख़िलाफ़ हैं। हम खिलाफ़ हैं तो बीजेपी के गवर्नमेंट से ख़िलाफ़ है, क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसले लिए हैं वो हर कम्युनिटी के अंदर दरार डालने की कोशिश की है, क्योंकि इनकी सियासत और इनकी राजकारणी और इनका जो एजेंडा है अवाम को पता चल चुका है। क्योंकि आने वाले दिनों में अवाम पूरी मुत्तहिद है, अवाम एक है कि इनके बीजेपी के मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में 15 सीट भी नहीं आएंगे, क्योंकि अवाम इतनी परेशान है कि सिर्फ इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने के लिए वेट कर रहे थे। आज डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। अवाम पूरी मुत्तहिद है कि कर्नाटक में मान लीजिए कि पूरे कांग्रेस के ही एमएलएज आएंगे और बीजेपी के तो मुझको लगता है कि कई जगह इनके अकाउंट भी नहीं खुलेंगे और 15 एमएलएज भी आना इनके लिए मुश्किल है।